Hello and welcome to the Armchair Sociologist. In this lecture, we will continue with our methodology series, where we are building a strong conceptual foundation in sociology for the purpose of civil service examination. As I mentioned in my earlier lectures as well, that I am using the Harlem Bose book to create a strong foundation in sociology for the purpose of civil service examination, whether it is UPSC or any other state civil service examination. So in continuation of that, today we will exploring quantitative primary research. We will be focusing on social surveys and questionnaires, and we will be going line by line from the text with examples and analysis which is tailored for the sociology optional. So let us begin and strengthen the methodological base of our preparation. Let's begin. So quantitative primary research, and within that we are going to study social surveys and questionnaires. So before we begin, what do we mean by primary? Primary here means that we are collecting the data directly from people, and that is why it is primary research. And quantitative means that we are collecting numerical and statistical data. So quantitative primary research के विदिन हम social survey और questionnaire को भी देखने वाले हैं. तो social survey क्या होता है? Social survey is defined as research projects that collect standardized data about large number of people. So it is a quantitative method which we use in sociology to systematically collect standardized data. So this data is collected in the same way from everyone. इसीलिए इसको standardized बोलते हैं. It is collected, this data is collected in same way from everyone from a large number of people. It helps sociologists study trends, correlations and differences in society. तो सर्वे का की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वी कलेक्ट द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल केसेस इन अ सैंपल. सेम इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसमें स्टैंडर्डाइजेशन आता है और इसी से रिलायबिलिटी भी आता है, क्योंकि एवरीवन इज आस्क्ड आइडेंटिकल क्वेश्चंस. सो कंपैरिजंस कैन बी मेड अक्रॉस इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और रीजन्स, जैसे कि सेंसस में किया जाता है या फिर एनएफएचएस में, एनएसएसओ में. इन सब जो लार्ज स्केल सोशल सर्वेज होता है उसमें हम इस तरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं कि हम सेम इंफॉर्मेशन सभी से पूछते हैं. What is the main method of collecting data? The main method is questionnaire. So questionnaire is the most practical tool used in surveys. It consists of a list of preset questions given to respondents, or either in person or by post or telephone or online. ये हम आगे भी देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, but the main method of collecting data in social surveys is via questionnaire. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सोशल सर्वेज में. तो एक्रॉर्ड एंड ह्यूज इन्होंने 1981 में टाइप्स ऑफ सोशल सर्विस दिया था. 3 टाइप्स ऑफ सोशल सर्विस होता है: फैक्चुअल, एटीट्यूड और एक्सप्लेनेटरी. अब एक एक करके हम देखते हैं. फैक्चुअल क्या है? फैक्चुअल सर्वे इज यूज्ड टू कलेक्ट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि गवर्नमेंट सेंसस या फिर पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन का जो डेटा होता है उसमें. सो द पर्पस इज यूज्ड टू कलेक्ट फैक्ट्स. The purpose is used to collect facts or descriptive information. अब फोकस क्या है इसका? फोकस है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडीशन सच एज इनकम का डेटा, ऑक्यूपेशन, हेल्थ. तो सिर्फ हमको डिस्क्रिप्टिव डेटा चाहिए, इसको हम इंटरप्रेट नहीं करते, बस डेटा ले लेते हैं. जैसे सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स पॉपुलेशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, उसी तरह पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन का डेटा. तो फैक्चुअल सर्वे हमें एक बेसलाइन डेटा देता है जिसपे फिर आगे भी हम सोशोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं. सेकेंड नंबर पे आते हैं एटीट्यूड सर्वे. एटीट्यूड सर्वे कहाँ पे यूज होता है? ओपिनियन पोल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके द्वारा यूज होता है टू मेजर द एटीट्यूड्स टू पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड पर्सनालिटीज. जो सोशियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं वोटिंग में, मतलब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाले में, तो दे कलेक्ट सच डेटा. सो दीज आर कंडक्टेड बाय ओपिनियन पोल ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टडी द सब्जेक्टिव स्टेट्स, opinions, attitudes, beliefs, or preferences. It is common in political sociology, marketing, and social psychology. It focuses on what people think or feel. इसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? इट हेल्प्स टू लिंक सोशियोलॉजी टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, वोटिंग बिहेवियर एंड वैल्यू सिस्टम्स. वहाँ पे ये एटीट्यूड सर्वेस यूज होते हैं. और थर्ड और लास्ट जो है एक्सप्लेनेटरी सर्वे. एक्सप्लेनेटरी सर्वे क्या होता है? इट गोज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होता है, बट इट गोज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन टू टेस्ट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस और टू प्रोड्यूस न्यू थ्योरीज. So it tries to find why something happens by testing hypotheses or sociological theories.
So when a question asks about scientific method or hypothesis testing, explanatory surveys are the best illustration of positivist methodology. अभी हमने जस्ट सोशल सर्वे क्या होता है वो देखा। वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मेंशन किया था कि द मेन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्शन टूल है विद इन सोशल सर्वे। क्वेश्चनेयर का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्री सेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस गिवन टू ऑल रिस्पोंडेंट्स in the same order, ensuring standardization and comparability. So, questionnaire is the most practical tool of quantitative research. It consists of a list of pre-decided questions, a preset list of questions that are asked to all respondents in the same sequence. तो इससे दो चीजें हम इंश्योर करते हैं, पहला स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा कंपेरेबिलिटी। स्टैंडर्डाइजेशन क्योंकि एवरीवन आंसर्स द सेम क्वेश्चंस, और कंपेरेबिलिटी क्योंकि रिस्पॉन्सेज कैन बी इजिली कंपेयर्ड अक्रॉस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो ये हो गया क्वेश्चनर। अब हम जाते हैं मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनर। कैसे कैसे हम क्वेश्चनर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के थ्रू, फिर है पोस्टल क्वेश्चनर, फिर है ग्रुप। आप ग्रुप को दे सकते हैं, और फिर क्वेश्चंस ओवर टेलीफोन, एंड फाइनली ईमेल या ऑनलाइन। अब हम एक एक करके मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनर देखेंगे। इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है मेथड, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्या एडवांटेजेस हैं इस मेथड के एडमिनिस्ट्रेशन के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के थ्रू आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो दिस इज गिवन टू इंडिविजुअल्स बाय इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स खुद इंडिविजुअल्स को देते हैं, तो चूंकि खुद दिया जा रहा है इंटरव्यूअर्स के द्वारा, तो एडवांटेजेस है बिकॉज since interviewers are present during the process, they can clarify the doubt and also ensure completion. लेकिन it is expensive and there will be interviewer bias. So in this method, the questionnaire is administered face to face by a trained interviewer who reads the questions and records the answers. So this makes it structured, as every respondent is asked the same questions by the interviewer. तो इंटरव्यूअर इस दौरान क्या करेंगे, उनके कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा उनको, तो कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे। तो इससे देयर विल बी हायर रिस्पांस रेट एंड एक्यूरेसी। ऑल्सो क्वेश्चनर इज फुल्ली कंप्लीटेड, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यूअर बायस होगा बिकॉज द रिस्पॉन्डेंट्स आंसर्स में बी इन्फ्लुएंस बाय द इंटरव्यूअर्स प्रेजेंस और टोन और एटीट्यूड, किसी भी चीज से वो बायस्ड हो सकता है। प्लस इट इज एक्सपेंसिव इन नेचर, लेकिन इसको यूज किया जाता है जैसे कि एनएसएसओ एम्प्लॉयमेंट सर्वे में, वहां पे जो ऑफिशियल सर्विस होता है वहां पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, पोस्टल क्वेश्चनर। इट इज सेंट बाय मेल विद स्टैम्प्ड रिटर्न एनवेलप, और ये इनएक्सपेंसिव है क्योंकि मेल से आप भेज रहे हैं, और आप बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया भी कवर कर सकते हैं। बट लो रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि हम में से कितने ही लोग उसको लौटाएंगे भरकर, और सैंपल बायस भी होगा क्योंकि जो लोग उसको भर के लौटाएंगे, भर के लौटा रहे हैं, उन्हीं के इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है, और जो बाकी नहीं लौटा रहे हैं भरकर क्वेश्चनेयर को, उनका इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या है, उनका एटीट्यूड उसको लेकर क्या है, वो आपको नहीं पता चल पाता है। सो दो इट इज इकोनॉमिकल, देयर इज नो नीड फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स, जहाँ पे यहाँ पर इंटरव्यूअर्स थे, इकोनॉमिकल है ये, और जोग्राफिकल कवरेज भी है, बट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स यहाँ पे इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। So many people might ignore, or only educated or literate or motivated people tend to respond to such questionnaires, and therefore it can skew the results. अब हम आते हैं तीसरे पे, दैट इज ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास और ऑफिस सेटिंग। मतलब कि आप जैसे क्वेश्चनर को लेकर आप किसी ऑफिस या किसी क्लास में सभी लोगों को आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी हायर रिटर्न रेट। क्योंकि आप वहीं पर जाकर वहाँ पे क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स इन क्लास, वर्कर्स इन फैक्ट्री और एम्प्लॉयज इन ऑफिस, तो वहीं पे स्पॉट पे वो कंप्लीट हो रहा है, तो हाई रिटर्न रेट है, और इट इज ऑफ लो कॉस्ट एज वेल। लेकिन पीयर इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम सभी जो है, दूसरा आदमी क्या भर रहा है, हमारे फ्रेंड्स क्या भर रहे हैं क्वेश्चनेयर में,
और हमारे कॉलीग्स क्या भर रहे हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो पीपल मे कॉन्फॉर्म टू व्हाट अदर्स आर सेइंग और राइटिंग. और इसमें साथ ही थोड़ा सा प्राइवेसी का भी इश्यूज हो सकता है कि लोग क्या भर रहे हैं. इट माइट रिड्यूस ऑनेस्टी इन रिस्पॉन्सेज. जैसे कि कई बार एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे या क्लास में भी कभी कभी फीडबैक लिया जाता है टीचर्स का, तो उस वहाँ पे ये यूज हो सकता है. ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आता है क्वेश्चंस ओवर टेलीफोन. टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू भी आप क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सर्वे. तो ये बहुत क्विक है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बट वी नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप रैपो. मतलब बहुत बार तो लोगों को लगता है कि ये स्पैम है और टेली मार्केटर का कॉल होगा, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड अ रैपो. और लोग क्वेश्चनर उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं बिकॉज पीपल आर बिजी एंड दे डोंट वांट टू यूज द टाइम टू एक्सप्लेन थिंग्स ओवर द टेलीफोन. नहीं कर पाते हैं. ऑल्सो इट इज़ डिफिकल्ट टू आस्क सेंसिटिव क्वेश्चंस ओवर द फोन. अब आपने कोई रैपो भी डेवलप नहीं किया और आप सेंसिटिव क्वेश्चंस फोन पे कैसे पूछें, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. लोगों का अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है. लेकिन अगर कोई कंज्यूमर फीडबैक या वैसा कुछ आपको जानकारी चाहिए विच इज ओपिनियन पोल या कंज्यूमर फीडबैक और फास्ट वे में चाहिए, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी यूजफुल हो सकता है. जैसे कि पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन यूज दिस मेथड ड्यूरिंग इलेक्शंस टू कलेक्ट वोटिंग इंटेंशंस. वहाँ पे ये यूज करते हैं. फिर हम लास्ट आते हैं ईमेल या ऑनलाइन के. जैसे कि वी सेंड द क्वेश्चनर इलेक्ट्रॉनिकली. Again, it is fast, cheap, has a large reach. It is useful to reach people who don't wish one-to-one questions. कई बार लोग प्राइवेसी इश्यूज होता है और वन टू वन फेस टू फेस और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वाले में वो नहीं रिप्लाई करना चाहते हैं, बट एक अनोनिमिटी जब रहती है तो वहाँ पे उनको कंफर्टेबल लगता है कि हम रिप्लाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा क्या उसके प्रति एटीट्यूड है, क्या हम सोचते हैं. लेकिन देन सैम्पल इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्यूटर यूजर्स. और कई बार अनोनिमिटी कंसर्न्स भी हो सकता है. अनोनिमिटी कंसर्न्स भी हो सकता है क्योंकि लोगों को लग सकता है कि वी डोंट नो दैट इट इज हार्ड टू इंश्योर हु एक्चुअली फिल्ड द फॉर्म. मतलब जिनको गया उन्होंने ही फॉर्म फॉर्म भरा या किसी और ने फॉर्म भर दिया. सो इट इज डिफिकल्ट टू नो. और डिजिटल डिवाइड है बिकॉज इट एक्सक्लूड्स ऑल दोज पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट और डिवाइसेस. तो ये काफ़ी रिजल्ट्स को स्क्यू कर सकता है. और स्पेशली अगर इसका आप रिजल्ट को पॉलिसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तब तो ये बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है. एंड मेनी अ टाइम्स पीपल ऑनलाइन जो फॉर्म्स होते हैं बस उसको ऐसे ही भर देते हैं केयरलेस, और मतलब उस पे ऑथेंटिसिटी भी इश्यूज होते हैं. तो कई बार इसको यूज किया जाता है जैसे मार्केट सर्वेस या फीडबैक फॉर्म्स के लिए. तो अगर आपका पर्पस ये है कि आप फास्ट, चीप और लार्ज रीच के लिए जाएं, तो वहां पे टेलीफोनिक इंटरव्यूज और इलेक्ट्रॉनिक वाले को यूज किया जा सकता है डिस्पाइट ऑफ इट्स डिसएडवांटेजेस. लेकिन अगर एकदम आपको वन टू वन पूरे ये ये चीज़ को फोकस करना है कि सभी चीज़ उसमें सर्वे का कंप्लीट हो और डाउट भी पूरा क्लैरिफाइड हो, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज या ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे काम आ सकता है. तो ये हो गया क्वेश्चनर क्या है और क्या मेथड्स हैं. और नेक्स्ट हम जाएंगे कि क्वेश्चनर को आखिरकार कैसे डिजाइन किया जाता है. एंड देन वी विल गेट इनटू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर. अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कैसे एडमिनिस्टर करें क्वेश्चनर को. Now you have a very important thing to decide that how to design the questionnaire. कैसे उसको डिजाइन कीजिएगा. So researchers must operationalize concepts where abstract ideas become measurable variables. तो इसका क्या मतलब हुआ कि in sociology we often deal with abstract ideas जैसे कि social class, status, power और alienation. अब अगर हमको इसको साइंटिफिकली पढ़ना है तो वी मस्ट ट्रांसलेट दीज आइडियाज इनटू मेजरेबल टर्म्स. इसको मेजर कैसे करेंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजिंग द कॉन्सेप्ट. जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है उनको मेजरेबल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना. तो ऑपरेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है. इट मीन्स टर्निंग द एब्स्ट्रैक्ट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इनटू वेरिएबल्स एंड दीज वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड. तो मान लीजिए आपको इकोनॉमिक स्टेटस पढ़ना है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे इनटू मेजरेबल इंडिकेटर्स जैसे कि इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस,
इन चीजों से आप इकोनॉमिक स्टेटस को ऑपरेशनलाइज करेंगे इनटू मेजरेबल वेरिएबल। नाउ इट रिक्वायर्स सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, जैसा अभी हमने बताया, अभी हमने कहा कि इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन टाइप, ये सब जो है रिक्वायर सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स द मेजरेबल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक स्टेटस के लिए इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन ये यूज कर सकते हैं। सो दीज इंडिकेटर्स आर द विजिबल साइंस ऑफ इनविजिबल कॉन्सेप्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसके विजिबल साइन है। अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट है रिलीजियोसिटी, तो आपका इंडिकेटर क्या होगा? आपका इंडिकेटर होगा कि अटेंडेंस एट रिलीजियस इवेंट्स, डोनेशन टू टेम्पल या मॉस्क या चर्च। उसी तरह अगर आपका कॉन्सेप्ट है जेंडर इक्वालिटी, तो आपके इंडिकेटर्स में इंक्लूड लिटरेसी गैप, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और पे पैरिटी। ये सब आपके इंडिकेटर हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विदाउट वैलिड इंडिकेटर्स द डेटा में अपीयर साइंटिफिक बट विल नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द रियल सोशल प्रोसेस। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मेजरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, तो आप क्या क्या इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी रिक्वायर अ सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। अब जो क्वेश्चनर है ये डिजाइन करते समय ये दो टाइप से हम डिजाइन कर सकते हैं। एक हो सकता है ओपन एंडेड और दूसरा हो सकता है क्लोज एंडेड। अब ये क्या होते हैं? ओपन एंडेड है जिसमें कि रिस्पोंडेंट्स गिव देयर ओन आंसर्स। इसमें हमें डेटा रिचर मिलेगा और इट विल बी हार्डर टू क्लासिफाई। So, in open ended questions, respondents are free to express their thoughts in their own words. This produces rich information. इसमें हमको क्वालिटेटिव डेटा मिल रहा है, लेकिन ये मीनिंग भी है, इसमें डेप्थ भी है, लेकिन इसमें इशू क्या है? इट इज हार्डर टू क्लासीफाई, इट इज हार्डर टू कोडिफाई। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, व्हाट डू यू थिंक आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन योर एरिया? अब इसमें रिस्पांस अलग अलग हो सकते हैं, इसमें आंसर भी बहुत नुआंस्ड मिल सकता है हमें। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें पर्सनल एक्सप्रेशन है, इंसाइट है, हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड डायमेंशन भी मिल सकता है जो हमने सोचा नहीं था। बट इट इज हार्ड टू कोड, इट इज हार्ड टू क्लासीफाई। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में वो कैसे फिट करेंगे? डिफिकल्ट है। और जब इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो भी टाइम लग जाता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बट इंटरप्रेटिविस्ट ऑफन प्रेफर ओपन एंडेड क्वेश्चंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स वैलिडिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। बट यहाँ पे हम अब आगे बढ़ते हैं क्लोज एंडेड के तरफ। क्लोज एंडेड में क्या होता है? क्लोज एंडेड में है फिक्स चॉइसेस। इसमें इजी टू कोड है, एनालाइज एंड क्वांटिफाई, ये एकदम प्रॉपर आपका क्वांटिटेटिव है उसका स्टाइल, क्योंकि आपके चॉइसेस ही फिक्स्ड हैं, तो आपको आंसर्स उसके जो रिस्पॉन्स भी मिलेंगे वो फिक्स टाइप के मिलेंगे। तो इट विल बी इजी टू कोड, एनालाइज एंड क्वांटिफाई। सो इन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स चूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस। सो दीज आर क्वांटिटेटिव अलाउिंग न्यूमेरिकल कंपैरिजन। जैसे मान लीजिए लाइकर्ट स्केल वाला जो यहाँ पे है, तो लाइकर्ट स्केल क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइकर्ट स्केल वाज नेम्ड आफ्टर रेंसिस लाइकर्ट इन 1932। दिस स्केल मेजर्स एटीट्यूड्स और ओपिनियंस क्वांटिटेटिवली। रिस्पोंडेंट्स इंडिकेट देयर लेवल ऑफ अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद अ स्टेटमेंट। तो इसको अक्सर हम लोग यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा, इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रांगली अग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसअग्री तक का एक स्केल रहता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि विमेन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, और आपने आपके ऑप्शन है स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री और फाइनली स्ट्रांगली डिसअग्री। सो दिस अलाउज द रिसर्चर्स टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे 1 से लेके 5 तक एंड परफॉर्म स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू फाइंड ट्रेंड्स इन एटीट्यूड्स। तो ये इजी हो जाता है कोड करने के लिए। इसको एटीट्यूड सर्वे में काफी यूज किया जाता है। एंड रिस्पॉन्सेज आर कोडेड इनटू कैटेगरीज व्हिच अलाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसको हम कोड करके इसको स्टैटिस्टिकली भी एनालाइज कर सकते हैं। So, in designing a questionnaire, a sociologist's main task is to convert the abstract ideas into measurable variables by selecting valid indicators and framing clear questions and coding answers systematically. This process ensures that the research remains both scientific and sociologically meaningful. अब हम आगे क्या देखेंगे? Advantages and disadvantages of questionnaire. तो अभी हमने देखा कि कैसे क्वेश्चनर को डिजाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हम उसके एडवांटेजेस को पहले देखेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल। वी कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम मेनी पीपल क्विकली एंड चीपली।
So questionnaires are one of the most cost effective and time efficient methods in social research. They enable researchers to reach a large number of respondents across wide geographical areas without extensive field work, जैसे कि हम सेंसस में करते हैं. दूसरा पॉइंट ये क्वांटिफाइबल होता है. मतलब कि the results of questionnaire can be easily quantified with computers. Data can be analyzed quickly and efficiently. जैसे कि हम SPSS या फिर Excel भी यूज करते हैं to for complex statistical analysis. थर्ड पॉइंट है objectivity. Limited researcher involvement reduces bias. This means that since questionnaire minimizes direct contact, researcher subjectivity is limited. This increases objectivity, which is a key positivist ideal. Next point being standardization. So same questions for all, and that leads to easy comparison and replication. So since every respondent is asked the same question in the same order, ensuring consistency, this allows replication of the study. And now this is very important because it is hallmark of scientific reliability, which is our next point. तो reliability में क्या होता है? It is repeatable with consistent results. We can check reliability using large samples. So reliability means consistency over time. When the same questionnaire yields similar results in repeated studies, repeatable, it proves that the findings are dependable. Next being representative. Large samples leads to findings which could be generalizable to population. So now because questionnaires can reach thousands of people, the findings can be generalized to the wider population provided the sampling is done scientifically. जैसे कि हम सेंसस में भी करते हैं. Last point being theoretical usefulness. Now positivists regard it as suitable for scientific rigorous and hypothesis testing research. So questionnaires, this method aligns perfectly with positivist methodology. It is objective, measurable and generalizable. So they enable hypothesis testing, model building, causal analysis. जैसे कि डरकहाइम स्टडी ऑफ सुसाइड में भी हमने देखा है कि दैट इंस्पायर्ड दिस साइंटिफिक स्पिरिट, दैट इज मेजरिंग सोशल फैक्ट्स थ्रू क्वांटिफाइबल डेटा. अब हम उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको भी देखेंगे. विद इन डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड वैलिडिटी. अभी हमने देखा था कि कैसे क्वेश्चनर है विच इज हाई ऑन रिलायबिलिटी, बट इट हैज लिमिटेड वैलिडिटी. What it means, responses may be dishonest, misunderstood, or socially desirable. So, validity refers to whether the method truly measures what it intends to measure. यहाँ पे जब रिलायबिलिटी की बात हो रही थी तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कंसिस्टेंसी, मतलब बार बार अगर वही हम क्वेश्चनर दें और सेम सैंपल हो तो रिपीटेड फाइंडिंग्स में सेम कंसिस्टेंट हमें रिजल्ट्स आएंगे. तो दैट इज रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट रिपीटेबल रिजल्ट्स एवरी टाइम. लेकिन वैलिडिटी का कहना होता है कि वेदर द मेथड ट्रूली मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर. हम जो मेजर करने जा रहे हैं क्या उसी को वो मेजर कर रहा है कि नहीं. इट इज क्वेश्चनिंग द मेथड इटसेल्फ, उसी को वो क्वेश्चन कर रहा है. रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे मैंने एक और वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है पहले, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए. सो रिस्पॉन्डेंट्स क्या होता है कि दे में हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गिव सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स. वो हो सकता है अपनी जो एक्चुअल सच्चाई है उसको शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसकी वजह से लिमिटेड वैलिडिटी आ सकती है क्वेश्चन में. दूसरा पॉइंट, रिस्पॉन्डेंट इंटरप्रिटेशन. नाउ सेम क्वेश्चंस कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. अब ये मैटर करता है कि लोगों का लैंग्वेज, उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कल्चर है. एवरीथिंग कैन अफेक्ट हाउ पीपल अंडरस्टैंड क्वेश्चंस. सो टू रिस्पॉन्डेंट्स में इंटरप्रेट फैमिली साइज और इनकम डिफरेंटली एंड दैट कुड change the accuracy of this method. So people who choose the same response may not mean the same thing. उसका मायने उसके लिए उनके लिए अलग अलग हो सकता है. Third point, researcher assumptions. Now question design reflects what researcher thinks is important. They may ignore respondents' meanings. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि when researchers frame the questions, they impose their own world view. उनके हिसाब से जो उनका वर्ल्ड व्यू है उनके हिसाब से वो अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, जिससे वो डिसाइड करते हैं कि
क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. Now this may also ignore or distort the respondents lived experience. जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनका क्या एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हो सकता है निकल कर नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने वाले और जो क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं उनका वर्ल्ड व्यू अलग अलग हो सकता है. रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है और रिस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिक को लेकर वो भिन्न हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोजिशन प्रॉब्लम. अब ये इम्पोजिशन प्रॉब्लम क्या होता है? ऑपरेशनलाइजेशन में डिस्टॉर्ट द रियलिटी. हमने ऑपरेशनलाइजेशन क्या होता है अभी जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है सोशियोलॉजी में या सोशल रिसर्च में उसको कैसे हमें क्वांटिफाई करने के लिए हम कैसे करते हैं. जैसे अगर इकोनॉमिक स्टेटस है तो वी यूज इनकम, ऑक्यूपेशन, उस तरह से. तो दिस ऑपरेशनलाइजेशन में ऑल्सो डिस्टॉर्ट रियलिटी बिकॉज when we are operationalizing the abstract concepts, we are reducing complex social life into predefined variables. Now, researchers try to impose order that may not exist. इसी को हम इम्पोजिशन प्रॉब्लम बोलते हैं. मतलब हम वो कैटेगरीज को इम्पोज कर सकते हैं जो एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हों. जो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से ऑपरेशनलाइजेशन किया जा रहा है और रिस्पोंडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए वो भी भिन्न हो सकता है. सो दैट माइट नॉट एग्जिस्ट इन द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चनर. तो ये सभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है आर्टिफिशियलिटी का. नाउ डिटैच्ड मेथड, दीज ऑब्जेक्टिव मेथड्स, डिटैच्ड मेथड्स लैक डेप्थ एंड फेल्स टू कैप्चर ह्यूमन मीनिंग्स. ये फेनोमेनोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्रिटिक समझ सकते हैं. सो द क्वेश्चनर आइसोलेट्स रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम रियल सोशल कॉन्टेक्स्ट. इट मिसेस इमोशंस, tone, and social interactions. Phenomenologists argue it produces artificial data, not lived reality. हमें बस artificial data मिल जाता है, उसके पीछे के छिपे हुए मीनिंग्स हम मिस कर सकते हैं. नेक्स्ट है लो रिस्पॉन्स रेट. स्पेशली अगर हम पोस्टल या ईमेल के माध्यम से सर्वेस कंडक्ट करें, सो दैट कैन लीड टू अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. सो मेनी रिस्पोंडेंट्स इग्नोर और फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनर, स्पेशली दोज विदाउट इंटरनेट एक्सेस या उनके पास समय ही नहीं हो. सो दिस कैन लीड टू सैंपल बायस. सैंपल बायस मतलब कि जो रिप्लाई कर रहे हैं वो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं एंड जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो डिसइंटरेस्टेड हैं या फिर वो अपने अपने आंसर्स को ओपन नहीं करना चाहते हैं. सो वी डोंट नो अबाउट दोज पीपल हु हैव नॉट represented themselves via these answering these questionnaire. So this leads to sample bias and under representation of certain groups. अब next point है कि there is no probing possible. We cannot clarify the misunderstandings or explore complex feelings as in interviews. अब जब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होता है खासकर जहाँ पे एक ब्रेड्थ है रिस्पोंडेंट के पास कि वो अपने हिसाब से ओपन एंडेड क्वेश्चन से अपने हिसाब से क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं. तो अगर वैसा सिचुएशन नहीं है और ये प्री सेट डिफाइंड क्वेश्चनर बना हुआ है तो वहाँ पे हम प्रोब नहीं कर सकते हैं उस टॉपिक को लेकर. Once the form is set, once the questionnaire is sent, the researcher cannot clarify or follow up. Unlike interviews where probing is possible. वहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, आप कैसे कैसे इसको कैसे समझ रहे हैं. Next point, changes in self concept. Now respondent self varies may shift during social interaction. Questionnaires can't capture this. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब इंटरव्यूज होता है, जब सोशल इंटरेक्शन मतलब कि 1-to-1 इंटरव्यूज होता है, वहां पे आंसर देने के टाइम पर ही जो अवेयरनेस क्रिएट होती है रिस्पोंडेंट्स का उस इंटरेक्शन के दौरान जब क्वेश्चनर पूछा जा रहा है और जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और रिस्पोंडेंट्स आंसर कर रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन द अवेयरनेस क्रिएटेड कैन इटसेल्फ शिफ्ट द व्यूज ऑफ रिस्पोंडेंट्स. अब ये जो डिस्कवरी का प्रोसेस है ये क्लियर नहीं हो पाएगा अगर हम क्वेश्चनर को भेज दे रहे हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है. So questionnaires freeze one-time responses and they miss the fluidity of self and identity जो कि change होता रहता है. Next point, detachment. It alienates the participants क्योंकि participants से बस questions पूछा जा रहा है और उसके answers उनसे ले लिए जा रहे हैं. So ये impersonal in nature हो जाता है. There is no human connection between the researcher and respondent. It prevents a deeper sociological insight, especially the critical or feminist
सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी एक्सप्लॉयटेटिव भी है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, because it seems as if researchers are using the respondents only to extract the data without involving the respondents in the research process, especially अगर feminist critique point of view से देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि बस वो एक माध्यम है जिससे हमें इंफॉर्मेशन ले लेना है और उनके पास कोई एजेंसी नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। अब हम नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल एवेल्युएशन मतलब हर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कहाँ पे ये क्वेश्चन और सोशल सर्वे स्टैंड करता है। Now, before we conclude this lecture, let us look at social surveys and questionnaires from the lens of theoretical perspectives. तो अगर हम पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव इन मेथड्स को फेवर करता है बिकॉज दे फाइंड इट रिलायबल, ऑब्जेक्टिव, रेप्लिकेबल and useful for the purpose of hypothesis testing. So, positivist influenced by thinkers like Auguste Comte and Emile Durkheim believe sociology should mirror natural sciences. They should use objective and systematic methods. So, they see social surveys and questionnaires as ideal tools. क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कि इन methods से we get standardized, quantifiable, replicable data, which is very useful for hypothesis testing for verifying the cause-effect relationships. नेक्स्ट आते हैं हम इंटरप्रेटिविस्ट से। इंटरप्रेटिविस्ट जो है उसको रिजेक्ट करते हैं बिकॉज दे फाइंड इट सुपरफिशियल। इंटरप्रेटिविस्ट लाइक मैक्स वेबर, they argue that society cannot be studied like physical phenomena because human beings attach meanings to their actions. So ये जो क्वेश्चनर है और सोशल सर्वेज हैं इसको ये बहुत स्ट्रक्चर्ड पाते हैं and they feel that they ignore the subjective meaning behind their social actions. Responses are superficial in nature, not reflecting of the real social processes. So they provide reliability but at the cost of validity. फिर हम आते हैं क्रिटिकल या फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट पे। उनका क्या मानना है कि both this critical and feminist perspective believe that questionnaires reflect a hierarchical relationship. मतलब रिसर्चर ही डिसाइड करते हैं कि क्या पूछना है, कौन कौन टॉपिक्स पे क्या क्वेश्चंस होने चाहिए एंड रिस्पोंडेंट्स का एक्चुअल कोई से नहीं होता है। ऐसा लगता है ऑलमोस्ट इट इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर कि रिसर्चर्स आर बेसिकली यूजिंग द रिस्पोंडेंट्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेटा इन्फॉर्मेशन। दे डू नॉट हैव एक्चुअली एनी रोल participating in the process. So this method feels detached and extractive, treating people as data sources, not as participants. So this detachment can reproduce inequalities, especially of class, of gender, of race. Especially अगर हम feminist critique की बात करें तो feminists like Anne Oakley rejected these masculinist methods such as surveys and questionnaire for being impersonal. They advocated more reflexive and empathetic approaches where the researcher engages meaningfully with participants. तो ये इसके सभी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हमने इसको देख लिया। So now we saw all the aspects of social survey and questionnaire. So there was a question in UPSC 2020 which was directly from this topic where we were asked to analyze the strengths and weaknesses of social survey method in social research. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो इसको हम कैसे आंसर करेंगे? हमारा बॉडी ऑफ मतलब आंसर का जो फॉर्मेट है वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वही रहेगा। अब सिंस द डायरेक्टिव इज एनालाइज तो ये हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम सोशल सर्वे के जितने भी विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उसमें उसको ब्रेक करें और स्पेशली हमसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसको एनालाइज करने के लिए कहा जा रहा है। तो बॉडी ऑफ द आंसर में ये मेजर पार्ट ले लेगा। सो नाउ वी विल जंप इनटू द इंट्रोडक्शन। वहां पे हम इसको डिफाइन करेंगे मतलब क्या कॉन्सेप्ट है और इसका हम एक कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या इसके रिलेवेंस है वो दे देंगे। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ये चीज स्टडी किया था कि क्या डेफिनेशन है और क्या की कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अब जब हम आते हैं बॉडी में तो बॉडी ऑफ द आंसर में बाकी चीजें ब्रीफ में दे सकते हैं बट चूंकि मेन टॉपिक है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो हम इस पर ज्यादा ड्वेल करेंगे, तो हम सारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। एट द एंड कमिंग टू कंक्लूजन वी नीड टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। तो बैलेंस व्यू पॉइंट में हम ये बताएंगे कि while social surveys provide reliability and representativeness, they often lack depth and validity. ये हमने देखा है। So they are very important, indispensable for mapping large scale social trend, but it is insufficient for capturing the subjective meanings for human action. तो इसीलिए important है कि जब बैलेंस सोशोलॉजिकल अप्रोच हो वो दोनों को इंटीग्रेट करें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस मेथड का इंपॉर्टेंस बहुत है बट इसको हम अगर क्वालिटेटिव मेथड्स के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें जो सोशल रियलिटी और बढ़िया से समझ में आएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं।
And that wraps up today's lecture on social surveys and questionnaire. In our next lecture, we will move ahead to interviews as research method. हंसो नहीं बेटा, करने तो माँ को. And that wraps up today's lecture on social surveys and questionnaires. In our next lecture, we will move ahead to interviews as a research method. And if you found this lecture helpful in building your conceptual clarity for UPSC Sociology Optional, please take a second to share your takeaway or doubt in the comment section. Please subscribe to the Armchair Sociologist for more such lectures, and like and share this video to help others preparing for Sociology Optional. See you in the next session. Until then, please keep learning and keep questioning and keep seeing the world sociologically. Thank you.